آج کا یہ بلاک لیول ہیلتھ میلہ ہے، یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے پورے ہندوستان کے ساتھ ساتھ ہمارے جموں کشمیر کے بلاکس میں بھی شروع کیا ہے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ کو 18 سے 23 تک یا اس کے بعد 31 تک ایکسٹینڈ کیا گیا۔ یہ منائے تھے ہماری ٹرن آج کی تھی، ہماری ڈسٹرکٹ بڑگام کی، بلاک بڑگام کی۔ اس سلسلے میں ہم نے مفت علاج معالجے کے ساتھ ساتھ مفت دوائیاں اور مفت اسکریننگ اور انفارمیشن اباؤٹ ڈفرینٹ ہیلتھ اسکیم آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہ ہم نے لوگوں کو فراہم کی آج کے اس میلے میں۔ جی مزید جو لوگ یہاں پر ان سے بات کی ہم نے، تو وہ کہہ رہے ہیں زیادہ تر ایلوپیتھک سے زیادہ ہم آیوش کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پیراسٹامال، ایماکسیلین وغیرہ وہ سارے ایسے زبانیں یاد ہیں۔ وہ آیوش والی دوائی وہ ہے کہ جو ان کو ابھی یاد ہی نہیں ہے، اس لیے یہ جا کے ان کو لگتا ہے کہ شاید اسے ہمیں فرق ہو جائے گی، ورنہ اور اس میں کچھ سائیڈ ایفیکٹس کم بھی ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی جو ہم نے یہاں پر ڈفرینٹ اسکیمز کے بارے میں لوگوں کو بولا، اب میں آپ کی وجہ سے آپ کے ذریعے لوگوں کو وہ انفارمیشن پہنچانا چاہتا ہوں ہمارے پاس کون کون سی اسکیمز ہیں تاکہ لوگ اس سے استفادہ ہو جائے۔ ضلع بڑگام کے اوم پورہ علاقے میں ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل کی طرف سے ایک کیمپ لگایا گیا، جو کہ یہاں پر لوگوں کی سہولیات کے لیے ایک میگا کیمپ لگایا گیا، جس میں کہ ہر ایک میڈیکل فیسلٹیز دی گئی، چاہے آرتھوپیڈک ہو، چاہے فزیشنز ہو، چاہے یہاں پر جنرل میڈیسن کی بھی ہو، پیڈیاٹریشنز ہو۔ یہاں پر جو ہے ADDC بڑگام نے یہاں پر اناگریشن کی اس فنکشن کی، اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ یہاں پر آیوش کے ہیں ہیڈ ٹرینر، ان سے ہم بات کریں گے ڈسٹرکٹ کے کہ کیا جو آیوش جو ہے، جو کہ آیورویدک ٹائپ کا جو سسٹم یہاں پر میڈیسنز کا اب یہ ہو رہا ہے کہ ہم بولتے ہیں انگلش میڈیسنز جو ہیں آلریڈی جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں ان سے، تو آیورویدک میڈیسنز میں یہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ جی آپ کا نام سر؟ جی میرا نام ہے ڈاکٹر عاشق حسین منشی، میں ڈسٹرکٹ بڑگام میں ایز سینئر میڈیکل آفیسر کام کر رہا ہوں۔ خاص میرا پوسٹنگ ہے آیوش یونٹ ڈسٹرکٹ حاصل بڑگام، اور میں ڈسٹرکٹ ٹرینر بھی ہوں یہاں، ماسٹر ٹرینر فار آیوش ویلنس سینٹرز کا۔ اور ہم نے یہاں ایک اسٹال ڈالا ہے اس میلے کے سلسلے میں، آیوش کا ہے، اور یہاں ہمارے اس وقت پیشنٹس کو چیک اپ ہوتا ہے، اسکریننگ ہوتے ہیں فار نان کمیونیکیبل ڈیزیز، اور ہم کو فری میڈیسنز ان کو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یوگا سیشنز بھی یہاں منعقد کیے ہیں فار دس لائف اسٹائل ڈس آرڈرز، فار مینٹل ویل بینگ اینڈ فار دس فزیکل ویل بینگ۔ جی اگر ہم بات کریں تو آپ بالکل مینٹل اور فزیکل فٹنس بھی آپ لوگوں کو اس کی متعلق بھی آپ ٹریننگ دیتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ انگلش میڈیسن کا زیادہ تر جو ہے یہاں پر اثر ہو رہا ہے ہر ایک جگہ، اور اس میں بولتے ہیں کہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے، لیکن آیورویدک میڈیسن میں وہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، تو اس کے متعلق آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھو یہ آیوش ہے ایکرومن ورڈ ہے، آیورویدک، یوگا، نیچروپیتھی، یونانی، سدھا اینڈ ہوموپیتھی، اور اس کے علاوہ سواگرپ آتا ہے۔ یہ ٹریڈیشنل میڈیسنز میں آتے ہیں، تو پہلے یہ انڈین سسٹمز میں آتا ہے، اب اس کا نامنکلیچر چینج کیا گیا ہے، اس کو آیوش رکھا گیا ہے۔ تو یہ آیوش جو ہے یہ ہولسٹک ٹریٹمنٹ مینز ہم پیشنٹ کو ٹریٹ نہیں کرتے ہیں، اس کی سمٹم کو ٹریٹ نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی پوری اس کو مد نظر رکھتے ہیں، اس کا پورا جسم، اس کی فیملی، اس کا انوائرمنٹ، ایوری تھنگ، سب ڈائمینشن جو ہیلتھ کے ہیں وہ سب ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور اکارڈنگلی علاج کرتے ہیں۔ تو جو رہا سوال سائیڈ ایفیکٹس کا، وہ سائیڈ ایفیکٹس ہر میڈیسن میں جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جس چیز کا ایفیکٹ ہوگا اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، بٹ ہمارے اس میں منیمل سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ ہاں اٹ از نو ڈاؤٹ ایلوپیتھک میڈیسن جو ہے اس میں بہت سے یہ سائیڈ ایفیکٹس، اور لوگ اب دیٹ از وائی پیپل آر وہ اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں، ہمارے اس آیوش سسٹم کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور یہ اس کو وے آف لائف آیوش کو لے رہے ہیں وہ۔ اور اس میں ہمارے گورنمنٹ بھی بہت دے آر ٹیکنگ ویری مچ انٹرسٹ ان ڈیولپنگ آیوش سسٹم آف میڈیسن۔ اب ہمارا یہاں گلوبل یہ ہمارے پارٹنرشپ میں MOUs بھی ہو گئے ہیں بہت سے فارن کنٹریز میں، بہت سے دیشوں میں ہمارے یہ آیوش چیئرز بھی ہیں۔ تو یہ not only in India or in Kashmir or یہ پورے گلوبلی ہمارے اس سسٹم کا اب یہ پرچار ہو رہا ہے، یہ پاپولرائز ہو رہا ہے لوگوں میں، اینڈ پیپل آر ٹریٹنگ ایز اے پریفرڈ سسٹم آف میڈیسن، اس کو لے رہے ہیں۔ اور اس میں ہمارے خاص کر ایک نیشنل آیوش مشن کا ایک 2014 میں ہمارا نیشنل آیوش مشن لانچ ہوا، اور نیشنل آیوش مشن کے سلسلے میں اس میں ہمارے ایک اس کا یہ آیوش ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹرز، اس میں زیادہ واضح کروں گا، آیوش ویلنس ہیلتھ سینٹرز جو ہیں یہ ہماری ویلی میں بھی، یہ پوری JNK میں، UT میں یہ آیوش کے بھی ہیلتھ ویلنس سینٹرز ہیں، اور ہمارے ڈسٹرکٹ بڑگام میں بھی یہاں ہیں، اور اس میں ہمارا NCDs، ہمارا
पोषण पखवाड़ा मीन्स हम न्यूट्रिशन ये कैंपस करते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में, हम स्क्रीनिंग करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, हम इसके अलावा कम्प्रहेंसिव हेल्थ ट्रीटमेंट देते हैं, कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर, उसमें हमारा सब कुछ एंटी आता है, हमारा ये इम्यूनाइजेशन सब कुछ है, हमाम है या शीरोदार है, मेंटल स्ट्रेस वगैरह के लिए ये चीज़ें हम करते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने की। तो हमने यहाँ पे जो मेडिकल कैंप जो है मेला है इसमें यहाँ पे हमने बात की, और आयुष जो है वो भी दुनिया भर में जो है फैल रहा है और वो भी बहुत काम कर रहे हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ के मतलब प्रैक्टिकल हेल्थ जो होती है इंसान की, तो उसके मतलब भी वो काम कर रहे हैं। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। वादी कश्मीर के साथ साथ सब डिवीजन गुलमर्ग में भी बिजली का निज़ाम जो है धर्म भरम है। वही हमने यहाँ पर आज लोकल से बात की तो उनका कहना है कि सहरी और इफ्तियार के टाइम जो इन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको सीधे टंगमर्ग ले चलते हैं, आइए दिखाते हैं क्या कह रहे हैं लोग यहाँ पर बिजली के हवाले से। रमज़ान का पाक महीना चला था, इसमें भी हमें बिजली कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। इफ्तार के वक्त भी बिजली नहीं होती है, सहरी के टाइम भी बिजली होती है। हम वो कैंडल लाइट पे हमें ये खाना खाना पड़ता है। हर एक जगह का यही हाल है। जहाँ पे आप फेसबुक और सोशल मीडिया को देखिए कि हर एक जगह का बिजली की प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल बिजली डिपार्टमेंट का फेलियर है। टोटल बिजली का कोई अता पता ही नहीं है, जैसे ही आती है 2 मिनट रहती है और चली जाती है। तो इस पाक रमज़ान के महीने में भी हमें अंधेरे में कर दिया गया है। ये बिजली डिपार्टमेंट का टोटल फेलियर है। टोटल हमें सहरी के टाइम में भी बिजली नहीं होती है और ना इफ्तियार के टाइम में बिजली होती है। फीस तो हम हर महीने भरते हैं, 7.5 रुपये हम हर महीने फीस भरते हैं। और इन्हें यह गवर्नमेंट स्मार्ट मीटर्स लगाने का दावा कर दिया, मगर बिजली कहीं है नहीं। जब बिजली नहीं तो उन पुराने मीटर्स में भी बिजली नहीं है कहीं पर। 750 रुपये का फी हर महीने भरना पड़ता है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि इस रमज़ान के पाक महीने में भी आपने बिजली यहाँ पर लोगों के लिए दस्तियाब नहीं रखी। बिल्कुल बिजली नहीं होती है। हमें 4 दिन हो गए, 4 दिन से मुझे लग रहा है कि टोटल ना सहरी के टाइम बिजली होती है ना इफ्तियार के टाइम। हर एक जगह का यही हाल है। सो मैं इस बिजली डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि इस मसले को हल किया जाए। तो आज सुबह एक दुखद खबर सुनने को आई, तो जिसमें बताया जा रहा है कि तार गिरने से 2 पुलिस एहलकार इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और उसी टाइम मौके पे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पे हमने डॉक्टर्स से बात की। और डॉक्टर अब्दुल्ला से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा उसमें एक जावेद नामी पुलिस एहलकार उसकी मौके पे ही डेथ हुई थी, और जो दूसरा मंजूर अहमद है तो वो अभी नॉर्मल है। तो उसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ पे मौके पे जो वहाँ पे देखा गया, तो मौके पे वहाँ पे सीनियर पुलिस अफसर्स मौजूद थे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे मौजूद थी। तो उसी हवाले से उनका जब उसकी डेड बॉडी मुकामी गाँव लिया गया जावेद के, तो वहाँ पे मौतम की लहर छा गई। मुज़म्मिल, JK 24/7 पुलवामा। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं वसीम कत्तू। इस वक्त हम खलेनी डोडा में हैं, जहां हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक मेला करवाया जा रहा है, ब्लॉक हेल्थ मेला। और ये साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, ब्लॉक असर की तरफ से यहाँ पे एक मेला करवाया गया है। और चीफ मेडिकल ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, याकूब मीर जी। इनसे बातचीत करते हैं, इस मेले के हवाले से बातचीत करेंगे। सर, आपका वेलकम है। क्या बताना चाहोगे आज के दिन के हवाले से? लगभग कितने स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए थे और कितने लोग यहाँ पे आ जाए? थैंक यू वसीम। ये स्टॉल, ये जो ब्लॉक हेल्थ मेला है, जैसे आपने डोडा में, ठाठरी में और बदरमा में, और आज हमारा चौथा मेला ये असर ब्लॉक में है, तो इसमें भी हमने उसी तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन पे हमने हेल्थ मेला करना था। और इस हेल्थ मेले में हमने 15 से 20 स्टॉल लगाए हैं। इन स्टॉल में हमने मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर, मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टर हैं, फिजिशियन है, आई वाला है, डेंटल है, आयुष्मान वाले हैं, योग वाले हैं। तो हमने इन स्टॉल को यहाँ इंस्टॉल किया है। इसके साथ साथ हमने बहुत से नुक्कड़ नाटक किए जो कि जनरल पब्लिक को अवेयरनेस दें रिगार्डिंग डिफरेंट हेल्थ स्कीम जो हमारी इस वक्त यूटी में चल रही हैं, ताकि हर फर्द और शख्स को ये इसके बारे में अवेयर हो और उसका स्कीम्स का बेनिफिट उठाएं। सर, क्या बताना चाहोगे? अभी भी कुछ लोगों ने गोल्डन कार्ड्स नहीं बनाए, क्या उसके बारे में भी यहाँ पे अवेयरनेस दी गई उन लोगों को? शुक्रिया जनाब। जैसे आपने हमें कोविड में बहुत पूरा भरपूर साथ दिया और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें कोविड में आपने कोविड से लोगों में अवेयरनेस पहुँचाई कि हमने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसे हमने अपनाने हैं। और हमने लोगों के डिस्टेंसिंग वगैरह जो आप हर रोज़ हमारी यहाँ से सोशल मीडिया से या न्यूज़ में देते थे, तो उसकी वजह से हमारा कोरोना जो है कंट्रोल हुआ था। उसी तरह हम आपसे ये भी एक अपील करते हैं कि आप अपने माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के, अपने न्यूज़ मीडियम से लोगों तक ये पहुंचा दें कि हमारे 3,55,770 लोग जो हैं, 3,55,750 जो लोग हैं, इनके हमने गोल्डन कार्ड बनाए। इसमें हमने 2,38,000 के करीब कार्ड बना चुके हैं। और जो लोग रहते हैं, पहले तो ये था कि इसमें सेंसिस का चक्कर था, 2011 की सेंसिस में जितने भी लोग थे उनको हमने करना था। अब हमारे पास नेफ्सा आ गया, क्योंकि उनके पास सेंसिस में वो लोग नहीं थे। अब हमारे पास नेफ्सा आ गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो का भी राशन कार्ड बना हुआ है वो
और सीडलिंग हुई है उसकी आधार के साथ, वो हमारे पास आएँ बगैर किसी, चाहे वो सेंसिस में हों या ना हों, हम उनकी राशन थोड़ा सा जानना चाहूँगा क्या फ्री मेडिसिन भी यहाँ पे लोगों को दी गई और कितना फ़ायदा लोगों को पहुँचा इस मेले से? देखें, हमें तो यहाँ पे शुगर का टेस्ट भी किया, ब्लड प्रेशर भी चेक किया, और जिसको हमने यहाँ शुगर दिखा तो उसको हमने पहले दवाई नहीं दी, ताकि हमें उसको 2-3-4 बार उसको फिर हमें उसको रैंडमली चेक करेंगे, फास्टिंग चेक करेंगे, उसके बाद अगर उसमें फिर डायबिटीज शुगर निकलता है, हाई निकलता है, तो उसके बाद हम उसको रजिस्टर करते हैं एज ए डायबिटिक पेशेंट, और उसके बाद हम उसके सर हाल ही में ये सवाल मैंने आपसे पूछा था कि हमारे जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे भी क्या इस तरह के कैंप्स लगाएंगे आप, बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे आप, फ्री मेडिसिन लोगों को में देंगे? हाँ, हम हर जगह ये कैंप लगाना, हम पूरे 5 ब्लॉक मेरे जो हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में, मैं हर ब्लॉक के हर सब सेंटर पे और हब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, जो आयुष्मान का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना, जो हमारा MLHP है, जैसे CHO है या डॉक्टर वहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, हम वहाँ पे कैंप लगाएंगे और उन छोटे छोटे एरियाज़ को हम कवर करेंगे, ताकि उन लोगों तक ये बेनिफिट पहुँचाया जाए। और उसके साथ साथ हमारी दूसरी एक स्कीम है ई-संजीवनी, यानी अगर हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर डॉक्टर बैठा है तो हमारे ई-संजीवनी के साथ कनेक्ट होगा, और वो चाहे वो दिल्ली में डॉक्टर हो या चंडीगढ़ में हो या एम्स में हो या किसी जगह का स्पेशलिस्ट से वो ट्रीटमेंट लेना चाहे तो ऑनलाइन उसके साथ वो ट्रीटमेंट चला जाए। बात करने के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर याकूब मीर जी हमसे बात कर रहे थे और साफ तौर पर बता रहे थे कि आज के मेले के हवाले से और जितनी भी सरकार की तरफ से स्कीमें जो लोगों के लिए आई हैं हेल्थ को लेके, वो सारी स्कीमों के बारे में यहाँ पे जानकारी दे रहे थे। और ये मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ट्रामा हॉस्पिटल है, इस ट्रामा हॉस्पिटल में ब्लॉक जो असर है, असर ब्लॉक की तरफ से यहाँ पे आज हेल्थ मेला रखा गया था और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा मिला, जिस तरह से चीफ मेडिकल ऑफिसर ने बताया। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे गुलिस्तान वसीम गुत्तू, डोडा।